हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम you all to your own channel Achievers Success Mantra. In our last session, we had discussed about limitations of typewriter, electronic typewriter, introduction to word processing, features of word processing applications, LibreOffice, LibreOffice Writer, word processor, starting LibreOffice Writer, creating a document, to save document using password, parts of writer window, cursor movement and mouse pointer. So continue with our unit 3 digital documentation. Today we are going to cover up some more topics that are text editing. And in text editing, we are going to discuss various features that are being provided to us by LibreOffice Writer, and they are undo and redo, moving and copying text, copy and paste, selecting text, selection criteria, selecting non-consecutive text items, selecting a vertical block of text, find and replace, jumping to the page number, non-printing characters, checking spelling and grammar, using synonyms and the thesaurus. So let's start with the text editing. So before doing all the features and performing them practically, we must know what text editing is. तो टेक्स्ट एडिटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब होता है डूइंग चेंजेस इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस करना एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर योर नीड, यानी कि जैसी आपकी नीड है, जैसा आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, उसमें जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो कैसा दिखना चाहिए, उसको करने के लिए हम जो भी चेंजेस करते हैं दैट इज नोन एज योर टेक्स्ट एडिटिंग. And the changes to a document can be done by using a edit feature that is present in your writer. And the editing that you do, that can be done in a number of ways, and the number of ways are your undo and redo, moving and copying text, copy and paste, selecting text, selection criteria, selecting non-consecutive text items, selecting a vertical block of text, find and replace, jumping to the page number, non-printing characters, checking spelling and grammar, and last will be using synonyms and phrases. तो ये 12 के 12 पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, क्योंकि यही 12 पॉइंट्स हैं जो हमें अपने टेक्स्ट में चेंजेस करने में, यानी कि टेक्स्ट एडिटिंग परफॉर्म करने में मदद करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज द अनडू एंड रीडू. अनडू एंड रीडू से तो आप फैमिलियर होंगे ही कि अनडू का मतलब क्या होता है और रीडू का मतलब क्या होता है. तो अनडू करने का मतलब होता है जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस जेड. ठीक है. और जो हम रीडू करते हैं फॉर दिस द कंट्रोल प्लस वाई. So, if you have to perform undo and redo in any document, first of all you have to open the existing file. तो वो कोई सी भी फाइल हो सकती है, चाहे वो doc1.odt हो, चाहे कोई सी भी हो. And after opening that document, you have to start editing by doing some modifications. Modification means you have to do some changes in that particular document. So if by mistake you made some changes that you don't want to do or that you want to erase, तो अगर आप कोई चेंजेस इरेज करना चाहते हैं फॉर यू हैव द अनडू ऑप्शन, उसके लिए आपके पास अनडू ऑप्शन होता है. और अगर अनडू ऑप्शन करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरा जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल ओके था एंड यू वांट टू रिस्टोर दैट प्रीवियस डाटा ऑफ योर्स, फॉर दैट यू हैव द रीडू ऑप्शन, उसके लिए आपके पास रीडू ऑप्शन होता है. तो लेट्स परफॉर्म इट प्रैक्टिकली. हमने अपने लास्ट सेशन में एक फाइल बनाई थी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, तो वही फाइल मैंने ओपन करी है. इस फाइल में हमारे पास कुछ डाटा है. ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं इसमें अनडू का ऑपरेशन अप्लाई करूंगी. सपोज आई डोंट वांट दिस राइट न्यू, और वी कैन डू व्हाट,
we can just first of all increase the size so that it is visible to you. हम सबसे पहले यहाँ पे अपना कुछ और डेटा ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने लिया है हाउ आर यू और उसके साथ लिए हैं 3 क्वेश्चन मार्क। अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैंने 2 क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, फॉर दैट आई कैन यूज कंट्रोल प्लस जेड की। तो उससे क्या होगा कि जो लास्ट एक्शन मैंने परफॉर्म किया था वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे क्वेश्चन मार्क्स इरेज हो चुके हैं। बट इफ आई वॉन्ट देम बैक कि नहीं मुझे वो वापस चाहिए, फॉर दैट यू प्रेस कंट्रोल प्लस वाई की एंड यू विल गेट दैट थिंग, वापस मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी कई सारे चेंजेस कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सीता इज अ फेमस सिंगर, ओके। नाउ दिस आई हैव परफॉर्म, मुझे यहाँ पे अपना अनडू एक्शन परफॉर्म करना है, तो मैंने कंट्रोल जेड किया तो उससे मेरा फुल स्टॉप गया। अगेन कंट्रोल जेड करूंगी तो मेरा जो लास्ट सिंगर वर्ड मैंने टाइप किया था दैट विल बी गॉन। बट I came to know that no, singer word is important. सीता is a famous, but what? क्या है वो famous क्या है? तो मुझे वो singer word वापस चाहिए. For that I will again press Control plus Y and I will get my singer word back. Okay. So in this way you can do the changes that you want to do by doing your undo and redo options. And the next one is your moving and copying text. When we are talking about moving means we are talking about removing the original text from its original position to some other location। यानी कि एक जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मान लीजिए वो सी ड्राइव में है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सी ड्राइव से उस डाटा को उठा के मैं किसी और प्लेस में यानी कि एफ ड्राइव में डालना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से उसको रिमूव करके एफ ड्राइव में डालूंगी। दैट मीन्स आई एम मूविंग माई file, okay। And copy means to create a duplicate copy of the original file, ठीक है, या original text। suppose यही काम अगर मेरा डी ड्राइव में है एक, ठीक है। एंड मुझे ये काम कहाँ शिफ्ट करना है, अपना चाहती हूँ कि इसकी एक कॉपी मेरी जी ड्राइव में भी आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से तो उसे कॉपी करूंगी और यहाँ पे कॉपी करने के बाद उस दूसरी जगह जाके उसे पेस्ट कर दूंगी। सो आई एम डूइंग व्हाट, आई एम जस्ट creating a duplicate copy of the original one to some other location। in this you can apply the cut and paste option, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका काम आता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए। For that what you have to do, firstly you have to select the text and then you have to go to the edit option and choose the option cut। if you don't want to do this, shortcut की control plus x आप इस्तेमाल कर सकते हैं to perform your action more quickly। or you can do one more thing, you have to place the cursor where you want to your text to be moved। जहाँ पे भी आप अपना टेक्स्ट मूव करना चाहते हैं वहाँ आप अपना कर्सर मूव करिए। and then again you can go to the edit option and choose the paste option from there, or directly you can press the shortcut key control plus V। so let's do it practically। तो अभी तो हम ये जो मूविंग एंड कॉपिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं ये हम अपने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे हैं। सो देखिए, अगर मैं यहाँ से कम्युनिटी वर्ड लेती हूँ, ठीक है, मैंने कम्युनिटी वर्ड लेके इसको कहीं और प्लेस करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट समवेयर एल्स। तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे मूव किया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू सम अदर लोकेशन, ओके। बट इफ आई वांट टू कॉपी इट, लेकिन अगर मुझे इसे कॉपी करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वर्ड। आइदर यू कैन just use control plus C to copy it, or you can go to the edit option and from here you can choose the option copy। and one more thing you can do, you can just directly right click on this particular selected word and you will get the option of copy over here। तो यहाँ से आप copy को click करिए and then place your cursor somewhere else wherever you want this word to be duplicated। so press control plus V and you will get the duplicate copy of that particular word। in the same way you can do this with the file, with folder, like this you can do। the next thing is copy and paste।
So copy and paste is used to make a duplicate copy of your selected text that we have already done. Okay, so you can do it for the file and folder also. Let me show you this कि आप इसे file and folder के लिए कैसे कर सकते हैं. For that let's move to the desktop. ठीक है, यहाँ हम desktop पे आ गए हैं. Suppose I have this file of mine over here, this Excel file. Okay, I have selected this file and now I want to just copy and paste it somewhere else. So just right click on it, or you can use the shortcut key also. So I have right clicked on it. I am getting the option here, copy. Click this option and click anywhere else and then choose the option paste. ओके, सो सी इट हैज़ बीन पेस्टेड ओवर हेयर. और ये आपकी जो जब पेस्ट होगी, इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी, ये होगी आपकी फाइनेंशियल प्लान कॉपी के नाम से. इसमें साथ में कॉपी वर्ड जुड़ जाता है, जिससे आपको ये पता लग जाता है दैट यस दिस फाइल इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वन. ओके, सो आई एम डिलीटिंग इट राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नीड इट. द नेक्स्ट थिंग इज सेलेक्टिंग टेक्स्ट. द राइटर is providing you a number of ways in which you can select your text. जो राइटर है वो क्या करता है, आपको बहुत सारे तरीके देता है in which you can select your text. So you can use keyboard, mouse or both of them in combination also you can use. So it is necessary to select your text if you want to perform any operation, whether you want to perform copy and paste, cut and paste, whatever you want to perform. Firstly, you have to select your text, and whenever you select your text, it will get highlighted. आपका text क्या होता है, highlighted हो जाता है. For editing the text, you first have to select the required text. जिस भी text को आपको change करना है, modifications करने हैं, editing करनी है, you firstly have to select that particular text, and then you can perform the editing on that text. So for the first thing is selecting text with the mouse. If with mouse you have to select your text, अगर mouse से आपको अपने text को select करना पड़े तो वो आप कैसे करेंगे? So this is very easy. Like मान लीजिए आपको अपना ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, लेबर ऑफिस. आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने कर्सर को लेके जाएंगे होम पर एंड देन जस्ट क्लिक द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग योर माउस, और जहां तक आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक इसको ड्रैग करिए एंड देन रिलीज योर लेफ्ट बटन. तो इस तरीके से आपका ये जो टेक्स्ट है ये क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है. इट कम्स इन हाईलाइटेड फॉर्म. तो देखिए आपको अलग से नजर आ रहा होगा जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है. अगर आप इसको एंड से सिलेक्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू मूव योर कर्सर एट द एंड एंड देन अगेन प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस एंड start selecting. In this way you can select this. Same you can do in between also. आप बीच में से भी कुछ भी select कर सकते हैं. The same thing I have explained over here. Like if you have to select something from the starting, you have to take your cursor at the beginning or at the end if you want to select it at the end, and you have to drag your mouse till the point where you want to get your text selected. You can also double click and triple click on it. अगर आप उसको ड्रैग करना नहीं चाहते तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. डबल क्लिक अगर आप करते हैं तो आपके पास एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, और अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो उससे आपका एक होल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. लेट्स सी हाउ. ठीक है, तो देखिए अगर मुझे एक न्यू वर्ड सेलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो मेरा न्यू वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो गया. और अगर मुझे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो सो आई विल जस्ट ट्रिपल क्लिक, और मेरे पास ये इतना पूरा जो पैराग्राफ है, क्योंकि ये फुल स्टॉक है, डेवलपमेंट से शुरू है, तो ये आपका पूरा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग टेक्स्ट विद द कीबोर्ड. अगर कीबोर्ड से आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो, हाउ यू विल डू, यू हैव टू use the shift key for selecting the text, and then you have to move the insertion point by moving the cursor movement keys. ठीक है, तो cursor movement keys आपकी क्या होती हैं, एरो कीज होती हैं, क्योंकि एरो कीज ही आपके कर्सर को मूव करने में मदद करती हैं थ्रू अ कीबोर्ड. सो लेट्स परफॉर्म इट विद कीबोर्ड. अब हम इसको कीबोर्ड से परफॉर्म कर रहे हैं तो देखिए कीबोर्ड से मैंने अप की प्रेस की है तो वो अप मूव करेगा,
राइट प्रेस करूंगी तो राइट मेरा कर्सर मूव करेगा, लेफ्ट प्रेस करूंगी तो लेफ्ट मूव करेगा. In the same way, you can just use these cursor movement keys that are your arrow keys. And if you want to select something, you just have to press the shift key. And along with the shift key, just press that arrow key in which direction you want to select your text. And your text will keep on selecting. And once you don't want to select it, just release both the buttons. And then your that particular text has been selected that you want. तो इस तरीके से आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अब हमने बात करी थी कि अगर हम कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना चाहें, इट मीन्स यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड बोथ. अगर हम इन दोनों का यूज करके सेलेक्ट करना चाहें कुछ, तो हाउ वी विल डू दैट. फॉर दैट you have to do what? You have to first of all place your insertion point at the start of a block, and then you have to click, and then again you have to move the insertion point at the end of the block, and you have to scroll your mouse till where you want to select your text. So I am using my keyboard to move the keys. Okay, suppose from development I want to select, so my cursor is at the starting of the development word. Now I will just drag my mouse and it will get selected. Okay, so in this way you can select it. Next is your selection criteria. So to select text in a writer, you have to swipe the mouse cursor over text. आपको क्या करना होता है, जो माउस का कर्सर होता है वो आपको टेक्स्ट के ऊपर मूव करना होता है. There are several selection tricks that can help you in speeding up your selection process. So let's see over here that how we have to do. So first is your to select a single word at a time. अगर एक समय पे आपको एक single word select करना है, for that you have to do what? You have to position mouse pointer anywhere on that word, and then you have to double click on it. तो ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि आप अपना इंसर्शन पॉइंट कहीं पे भी लेके जाइए, and then just double click on it and your that particular word will be selected. The second is to select a complete sentence at a time. अगर एक समय में आपको एक पूरा sentence जो है select करना हो, so you have to do what? You have to place your mouse pointer anywhere in the sentence, and then you have to triple click. ठीक है, ट्रिपल क्लिक क्या होता है, इसमें आपको लेफ्ट बटन जो होता है माउस का उसे 3 टाइम्स फटाफट प्रेस करना होता है. ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है लिब्रे ऑफिस से लेके सॉफ्टवेयर तक ये एक ही लाइन है. सो आई एम प्लेसिंग माई कर्सर एनीवेयर एंड देन आई एम ट्रिपल क्लिकिंग. तो देखिए मेरा एक सिंगल सेंटेंस जो है वो एक बार में सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर टू सेलेक्ट ए कंप्लीट पैराग्राफ एट अ टाइम. अगर एक बार में आपको पूरा पैराग्राफ जो है सेलेक्ट करना है, फॉर दैट अगेन यू हैव टू जस्ट प्लेस योर माउस पॉइंटर एनीवेयर इन द पैराग्राफ and you have to click quadruple. Quadruple means 4 times you have to click. So let's do it. I am placing my cursor anywhere and then 4 times I have clicked my mouse left button. So my whole paragraph has got selected over here. And the last one is a document. अगर एक document आपको पूरा का पूरा document select करना है, for that you can use Ctrl plus A key from the keyboard, or you can drag your mouse pointer till you see a right arrow which is white and then click it thrice. ठीक है, so I am pressing Ctrl plus A from the keyboard, so my whole document is selected right now. Next is selecting non-consecutive text items. It is not text, it is text. Okay, text. So you have to select non-consecutive text items. मान लीजिए कोई ये ऐसा टेक्स्ट है जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है और आपको कहा गया है कि पैराग्राफ में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स आपको टेक्स्ट के सेलेक्ट करने हैं. तो आप ये कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, अलग अलग पार्ट्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे एक ही बार में.
So you don't have to worry. Writer provides you with the most special feature in which you can select the non-continuous text using the keyboard and mouse. कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके आप नॉन कॉन्सिक्यूटिव टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. So the first one is by using keyboard. अगर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपको सेलेक्ट करना हो, so firstly you have to do what? You have to select the first piece of text and then you have to press shift plus F8. shift plus F8 की आपको प्रेस करनी है. ये यहाँ से आप क्या होगा, आप एडिंग सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे. Then you have to use the arrow keys to move to the start of the next piece of text to be selected. Then hold on the shift key and select the next piece of text. For that, I am here. Okay. So firstly, I am doing what? I am selecting my this word, and then I have to press shift plus F8 key. ठीक है. तो हम शिफ्ट और F8 की को प्रेस कर चुके हैं. So now you have to just keep on pressing the shift key and then you can select your particular word. It is telling you that you have to use the arrow keys to move to the start of the next piece of text to be selected. Okay. Select okay, in this way you can select it. The next is by using mouse. So अगर आपको कीबोर्ड से एग्जिट करना हो तो आप उसके लिए एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं उस मोड से बाहर आने के लिए. अगर आपको माउस का इस्तेमाल करना हो तो माउस के लिए आपको क्या करना होता है, पहले अपना फर्स्ट पीस सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको कंट्रोल की का इस्तेमाल करना होता है अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए. ठीक है. सो एस्केप मैंने प्रेस कर दिया, मैं उस मोड से बाहर आ चुकी हूँ. नाउ आई एम सेलेक्टिंग माई वन वर्ड, देन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल here and then select your that particular word. Okay. तो आप देखिए नॉन कॉन्टिन्यूअस टेक्स्ट को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर पा रहे हैं. राइट. देन इज सेलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. अगर टेक्स्ट का एक वर्टिकल ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना हो, हाउ यू विल डू इट. सो विद द हेल्प ऑफ राइटर इट इज possible to select a vertical block or a column of text that is separated by spaces or tabs. So if you have to select the vertical block of text, so you have to choose what? You have to go to the edit option and click on the selection mode and then click the block area. And if you don't want to do this, you just have to press the Ctrl plus F8 key from the keyboard and your thing will be done. Let's go to the edit option on the top over here, and here you have to go on selection mode and then click on block area. Okay. So इस तरीके से देखिए आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं. हर एक लाइन का आपका जो है सिलेक्शन अलग अलग चल रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक करके सेलेक्ट कर सकते हैं. Then is find and replace. If you have to use this feature, it is very interesting feature and very helpful for you. So this feature is used to search for a text and to replace the text with other text as well. For doing this, you have to go to the edit option and find the option find and replace over there. And when you click on it, it will open a dialog box in front of you where you can find the find option. And if you want to replace something there, you can get the replace option as well. ठीक है. तो उसके स्टेप्स यहाँ पे मैंने आपको दे ही रखे हैं, तो आप इनको यहाँ से
पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप मेन्यू ऑप्शन का यूज करना ना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस एफ की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज अ शॉर्टकट की टू मेक योर वर्क फास्ट। सपोज आई हैव टू सेलेक्ट समथिंग, ठीक है, मुझे कुछ फाइंड करना है। सो आई एम गोइंग टू माई एडिट ऑप्शन एंड हेयर आई एम गेटिंग द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ फाइंड करना है, सो आई एम गोइंग ओनली ऑन फाइंड ऑप्शन, दैट इज कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। तो यहाँ नीचे देखिए आपके पास एक बॉक्स आया है जहाँ पे आप वर्ड लिख सकते हैं। तो मैं ओपन वर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ और ओपन कर लिखने के बाद मैं प्रेस करूंगी एंटर। तो देखिए जो उसने मेरा वर्ड सर्च किया वो उसने हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से अगर और कोई वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता होगा सेम यही, तो वो नेक्स्ट टाइम भी इसको सर्च करेगा व्हेन आई प्रेस एंटर। तो देखिए सेकेंड ओपन को भी इसने हाईलाइट कर दिया है। ओके, एंड इफ यू वांट टू रिप्लेस समथिंग, फॉर दैट you have to do what, you again have to go to the edit option and choose find and replace option from there, or you can directly press Ctrl plus H from the keyboard. So I am choosing it from here. तो find and replace का करते ही इसने मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया है और यहाँ पे इसने मुझे दो ऑप्शन दिए, फाइंड एंड नीचे दिया उसने रिप्लेस, ठीक है। तो अगर मैं फाइंड का यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, कि फाइंड में आप एंड ढूंढिए, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दीजिए एंड के साइन से, ठीक है। तो मैंने ये सब कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ रिप्लेस, ठीक है। तो अगर मैं रिप्लेस दबाती हूँ तो वो सबसे पहले एक वर्ड को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, उसने मुझे दिखा दिया वो सेलेक्ट करके। तो इफ यू वांट टू डू इट, क्लिक ऑन रिप्लेस, ठीक है। और इस तरीके से वो जितने भी एंड होंगे उनको एक एक करके हाईलाइट करता चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जितने भी एंड है आपके डॉक्यूमेंट में वो सब एंड साइन से रिप्लेस हो जाएं। फॉर दैट यू कैन यूज द रिप्लेस ऑल ऑप्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन इट रिप्लेस ऑल, तो ये सारे जितने भी एंड्स हैं उन सबको इसने क्या कर दिया, देखिए एंड के साइन से रिप्लेस कर दिया। तो आप एक ही बार में ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ फाइंड को भी एक बार में सारे वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैं फाइंड करना चाहती हूँ न्यू वर्ड को, ठीक है। तो न्यू को लिख के मैं यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगी तो जितने भी न्यू होंगे उनको एक बार में ही हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू हैव टू फाइंड और रिप्लेस समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट, एंड इट इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड you want to do the changes as quickly as possible. So these are the steps that I have told you. भी हमने इसे प्रैक्टिकली कर ही लिया है। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से फाइंड ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से रिप्लेस का इस्तेमाल होता है या रिप्लेस ऑल का होता है। सो दे आर हेल्पफुल। द नेक्स्ट थिंग इज जंपिंग टू द पेज नंबर। कई बार क्या होता है हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और हम क्या नहीं कर पाते, हम पूरे डॉक्यूमेंट को सर्व नहीं कर सकते, उसको चेक नहीं कर सकते। हमें एक पर्टिकुलर पेज नंबर पे जंप करना होता है, जाना होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हम उसे स्क्रॉल करते रहें करते रहें करते रहें, तो इतने सारे पेजेस को स्क्रॉल करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हेडेक वाला काम हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो राइटर है वो हमें गो टू पेज फीचर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। फ्रॉम there you can just go to any page number that you want. For this you have to go to the edit menu and you have to select go to page, या आप कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। There you will have to specify the page number in the dialog box, and as you do this you will directly reach that particular page number. So let's see how it is. अभी तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में अकेला एक ही पेज है, तो पहले हम पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपना ये डाटा जो है अलग अलग पेजेस में कर देती हूँ, सो दैट देयर इज नॉट अ सिंगल डिफिकल्टी फॉर यू, ठीक है। ये थर्ड पेज हो गया हमारा। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से कट करके
दूसरे पेज में ले जा सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव 4 पेजेस। अब हमारे पास क्या है, 4 पेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे ये 4 पेजेस अवेलेबल हो गए, अब मैं चाहती हूँ कि किसी पर्टिकुलर पेज पे जाऊँ। फॉर दैट गो टू द एडिट ऑप्शन एंड फ्रॉम एडिट यू विल गेट गो टू पेज ऑप्शन हेयर, क्लिक ऑन इट। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है पेज नंबर, तो सपोज आई हैव टू गो टू द 4th पेज, तो मैंने पेज नंबर दे दिया इसको यहाँ पर एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये डायरेक्टली देखिए मुझे 4th पेज पे ले आया था, 4th पेज पे हमने अपना ये डाटा डाला था इसके अंदर, राइट। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस जी फ्रॉम योर कीबोर्ड, अगेन इट इज आस्किंग यू टू गिव अ पेज नंबर, तो इसको सेकंड पेज नंबर देते हैं। देन क्लिक ऑन ओके, इट विल टेक यू टू द सेकंड पेज डायरेक्टली। तो इस तरीके से भी आपका काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट आपको सर्व नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं वेयर यू वांट टू डू एंड परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्शन। द नेक्स्ट इज नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स इन डाटा एंट्री। जब भी आप कोई डाटा एंट्री करते हैं तो जो भी चीज़ एंटर होती है उसको हम एक अल्फ़ाबेट, नंबर, पंक्चुएशन मार्क इस तरीके से ट्रीट करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। So whenever you press the keys like enter, space bar, tab key, they do not appear on the screen. आपको स्क्रीन पे तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन हम एक्चुअली में इन कीज की मदद से कुछ करेक्टर्स डॉक्यूमेंट में एंटर कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि ऐसे नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को आप अगर डॉक्यूमेंट पर डिस्प्ले कर पाएँ और आप उसको एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की बता पाएँ। तो अगर आप ऐसे नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क। ठीक है, या आप डायरेक्टली कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F10 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल प्लस F10, तो देखिए मेरे पास ये मार्क आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको टैब स्पेस शो करना है तो उसके लिए एरो साइन होता है, स्पेस बार का स्पेस शो करना है तो उसके लिए डॉट होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे टैब दिया तो देखिए छोटा सा एरो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये छोटा सा एरो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरोज आपके पास आ जाएंगे, जहाँ पे आप स्पेस देंगे वहां पे डॉट आते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं इफ यू वांट टू सी द नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। Then is your checking spelling and grammar, the most useful feature that is being provided to you by the writer. Even other softwares are also providing you this feature. So this feature is helping us in correcting the spelling and the grammar whenever we do a mistake while typing. या कई बार अगर हमें स्पेलिंग नहीं पता होती या ग्रामर के रूल्स नहीं पता होते तो इसमें ये फीचर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। If there are any grammatical errors that are there in the document, they are underlined by a wavy blue line. ठीक है, इस तरह की एक ब्लू लाइन के थ्रू वो अंडरलाइन हो जाते हैं अगर कभी भी आपका कोई ग्रामेटिकल एरर होता है। यू जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट एंड यू कैन डू द पर्टिकुलर करेक्शन एज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं किसी रिपोर्ट की तो उसमें आपकी स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो चेक हो सकती है। तो स्पेलिंग चेकर जो होता है वो चेक करता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं क्या वो उसकी इंस्टॉल डिक्शनरी के अंदर हैं या नहीं है। इसी तरीके से ग्रामर चेकर भी अलग से काम करता है और ये स्पेलिंग चेकर के साथ कॉम्बिनेशन में भी काम करता है। अगर आपको चेक करना है अपने डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग और ग्रामर की मेरे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर जो वो सही चल रहे हैं या नहीं, फॉर दैट यू हैव सम सेलेक्ट टूल्स। ठीक है, जहाँ पे आपको टूल्स में जाके चेक सेलेक्ट करना होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को, और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और यू कैन डायरेक्टली प्रेस द F7 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। ठीक है, इससे आपके पास क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहां से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और अगर बाई चांस आपके डॉक्यूमेंट की चेकिंग पूरी हो चुकी है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं एक बार दोबारा चेकिंग हो
Then also you can use the restart option to recheck your whole document. So let's do this. ठीक है, अभी हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं कि अभी हमें इसमें से ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो हमारा डॉक्यूमेंट का पहले लुक था वो सेम वैसे का वैसा ही हो जाए। ठीक है, सो इट इज़ ओवर हेयर। यहाँ पे अब इसने स्पेस की जगह हमें डॉट दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस फीचर से एस्केप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एस्केप कर चुके हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार में देखिए आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन इन्होंने दे रखा होगा, जहाँ से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू डू फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये चेक स्पेलिंग का ऑप्शन है। ठीक है, क्लिक ऑन दिस और उसने एक डायलॉग बॉक्स खोला और यहाँ लिखा है द स्पेल चेक इज कंप्लीट। ठीक है, तो ठीक है, स्पेल चेक कंप्लीट है, उसको कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिली। तो चलिए हम जानबूझ के यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमें कुछ शो करता है या नहीं। सो अगेन आई एम प्रेसिंग ऑन स्पेल चेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने दिखा दिया टैलेंट वर्ड जो दिखाया उसने। ठीक है, नॉट इन डिक्शनरी की ये रेड वर्ड जो है ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। और उसने नीचे आपको सजेशंस दे रखे हैं कि इनमें से आप कौन सा वर्ड चूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब ग्रामर यहाँ पे हमारी ओके है। ठीक है, अब इसको हमने करेक्ट कर दिया तो वहां पे देखिए हमारा जो टैलेंट रेड वर्ड था वो हाईलाइट से हट चुका है। अब इसी तरीके से ईडियास को भी उसने हमें सजेशंस दे रखे हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू चेकिंग एट बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको दोबारा अगर चेकिंग करनी है तो आप इसको यस कर दीजिए। ठीक है, और बाद में वो स्पेल चेक कंप्लीट करके आपको ओके कर देगा। राइट, लेट्स डू सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो देखते हैं अब वो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़ पाता है या नहीं। तो लेट्स प्रेस F7 की फ्रॉम हेयर। ठीक है, और यहाँ पे चेक ग्रामर जो दे रखा है, ठीक है, इसको हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको करेक्ट ऑल करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लैंग्वेज उसने कही है यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ से टेक्स्ट की लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन जस्ट डू इट। तो इस तरीके से आपके स्पेलिंग और ग्रामर दोनों ही चेक हो जाते हैं। यू हैव द फीचर ऑटोमेटिक स्पेल चेकर ऑल्सो। ठीक है, ये जो फीचर है ये आपकी मदद करता है हर एक वर्ड को चेक करने में कि आप जो भी वर्ड आप टाइप कर रहे हैं या जो भी वर्ड डिस्प्ले हो रहा है रेड लाइन के साथ उसको वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये अनरिकॉग्नाइज वर्ड है। देन यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द मेन्यू दैट ओपन्स अप। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंट्रोल प्लस F10। ठीक है, तो ये देखिए इसने मेरे को कंट्रोल वर्ड को ना रेड से दिखा दिया है। ठीक है, जब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी, आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन इट इट विल गिव मी सम ऑप्शंस। ये इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, या तो मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकती हूँ या अगर मैं चाहती हूँ कि इसको इग्नोर करूँ तो मैं इग्नोर कर सकती हूँ। अगर मैं इसको चाहती हूँ कि मेरी डिक्शनरी में ऐड हो जाए क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ड सही है, ठीक है, तो मैं इसको अपनी डिक्शनरी में भी ऐड कर सकती हूँ जिससे कि आगे किसी पैराग्राफ में या कभी फ्यूचर में किसी भी चीज़ में मुझे इसमें दोबारा रेड लाइन शो ना हो। देन नेक्स्ट इज योर यूजिंग सिनोनिम्स एंड द ट्रेजर्स। अगर आपको सिनोनिम्स और ट्रेजर्स यूज करने हो, सो वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स यू टू लुक फॉर द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं, वो वर्ड जिनका सेम मीनिंग होता है, एंड एंटोनियम्स एज वेल, वो वर्ड दैट हैव द अपोजिट मीनिंग। और ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, ट्रेजर्स के अंदर। तो जो लिस्ट है आपके सिनोनिम्स की वो आप कंटेक्स्ट मेन्यू में से एक्सेस कर सकते हैं।
For that you just have to right click on a word and then you have to point to the synonyms on the context menu. तो इससे आपके पास क्या होगा, एक सब मेन्यू खुल के आएगा जिसमें आपके पास उसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस दे रखे होंगे और वहां से आप कोई भी एक वर्ड चूज करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये डेवलपमेंट वर्ड है, ठीक है, ये डेवलपमेंट वर्ड मैंने लिया, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे अपने कंटेक्स्ट मेन्यू में से चूज कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ से ये चाहिए। गो टू पेजेस फ्रॉम योर टूल्स, ठीक है, और डेवलपमेंट की जगह देखिए उसने आपको कई सारे वर्ड दे दिए हैं, आप कौन सा चाहते हैं, एवोल्यूशन चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप उसको चूज करके यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए रिप्लेस बटन को, और फिर रिप्लेस बटन क्लिक करते ही तो देखिए डेवलपमेंट वर्ड जो था वो आपका इम्प्रूवमेंट में चेंज हो चुका है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, टूल्स ऑप्शन में जाके आपके पास ऑप्शन होगा थेसियस का, उसको आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स एंड देयर यू कैन जस्ट चेंज द पर्टिकुलर वर्ड। जो सिनोनिम्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं एक डिक्शनरी से, यानी कि अगर हम एक डिक्शनरी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि डिक्शनरी जो होती है वो अपने अंदर डेफिनेशंस, प्रोनाउंसिएशंस रखती है, जबकि टेजर्स जो होते हैं वो अपने अंदर वो वर्ड्स रखते हैं दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स और अपोजिट मीनिंग्स, यानी कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। टेजर्स हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स अपने अंदर रखते हैं, तो इसलिए हम टेजर्स को एक डिक्शनरी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लेट्स डू इट अगेन। मान लीजिए अब मैं ओपन चूज किया है, अगेन गो टू द टूल्स ऑप्शन, गो टू टेजर्स, ठीक है, करंट वर्ड आपका जो भी है, ठीक है, आप उसको चूज कर लीजिए। अब ओपन मैंने सिलेक्ट कर रखा है, आप ओपन को किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, यू हैव बीन गिवन मैनी वर्ड्स फ्रॉम हियर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो दे रखा है रिलेटेड टर्म, एंटोनियम, तो ओपन की जगह अगर मैं क्लोज यूज करना चाहती हूँ तो मैं क्लोज को सेलेक्ट करके रिप्लेस कर दूंगी, तो यहाँ पे जो मेरा ओपन वर्ड था वो क्लोज में रिप्लेस हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट अप्लाई द सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स एज वेल इन योर डॉक्यूमेंट। और ये फीचर इसलिए होता है जिससे कि आप कुछ ऐसी पुराने वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके कुछ और अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर पाएं। That's why this feature has been given to you. So this all is for today. Revise this whole session. ये पूरा सेशन एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा। वेरी इजी इट इज, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है करने में, तो इसको प्रैक्टिकली जरूर परफॉर्म करिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द हेल्प एज यू आर गेटिंग। तो इसको हर एक के साथ शेयर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट। द पर्सन्स हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद अस, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। वी विल कीप यू अपडेटेड विद द न्यू सेशंस दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू। और वो पर्सन जो कि चैनल वॉच करते हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, they are requested to please subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep yourselves updated with the upcoming sessions, और आपको ऑटोमेटिकली जो उन सेशंस के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। Meet you in the next session with some more important topics of this same unit. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।